Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS इंडियन पॉलिटी की 2000 MCQs की सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं. दिस इज गोइंग टू बी टेस्ट नंबर 72 ऑफ कमिटेड 2000 क्वेश्चन. वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड मोर देन 1400 क्वेश्चन, सो वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू 1400 टू 1500 वाला सीरीज. दिस इज अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट जो कि आप सभी वीडियोस में देखते हो. वी आर नॉट वेस्टिंग एनी टाइम ऑन एनी काइंड ऑफ इंट्रो. वी आर डायरेक्टली जंपिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा. ये बिल्कुल करेक्ट है, हमें करेक्ट ही स्टेटमेंट बताना है. द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड थ्रू अ सीक्रेट बैलेट, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. दैट इज नॉट करेक्ट. ठीक है, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. ही इज चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा. जस्ट बिकॉज ही हैपेंस टू बी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, दैट डज नॉट necessarily mean that he is a member of the house. So 1 and 2 is going to be the correct answer and hence A is going to be the right answer. Which of the following writs is or are issued only against the judicial and quasi-judicial authorities? So see, all the writs that you can see here except the prohibition, right? All these writs can be issued against private individual and certain other. There is only one writ, that is prohibition, that is issued only against quasi-judicial, judicial and quasi-judicial bodies. ठीक है, so 3 only is going to be the right answer, that is B is going to be the right answer. Consider the following statement regarding interstate trade and commerce under Article 301. Okay, the objective of this provision is to encourage freedom of trade, commerce and intercourse. बिल्कुल, ये तो जनरल स्टेटमेंट है, that would be the objective. ठीक है, आर्टिकल 301 does not cover intra-state trade. that is a wrong statement. intra-state जो विद इन द स्टेट जो ट्रेड होती है उसको भी आर्टिकल 301 कवर करता है. ठीक है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, बिकॉज 2 is incorrect, so this can't be part of answer, this can be answer, this can't be answer. So the only possible answer that we can reach using the elimination method is C, and hence let us see if C is the answer. Yes, C is the right answer. So we did not even touch this third provision, or we were able to reach by using the elimination technique to the answer, that is C. ठीक है, which of the following is not in the state list under the Constitution of India? So fisheries, yes, this is not into the state list. Fishery is actually under the state list. Agriculture is also under the state list. So education and forest, which happens to be under concurrent list, right? So this would be the answer. 3 and 4 is going to be the right answer. These are not actually under the state list. D is the right answer. Who appoints the ad hoc judges of the Supreme Court of India? So of course you have this President of India or Chief Justice of India. It's, I guess, Chief Justice of India who will be appointing the ad hoc judges of Supreme Court of India. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग. नीति आयोग इज जस्ट नो, इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी. नीति आयोग, लाइक प्लानिंग कमीशन, इज अ व्हाट यू कॉल एग्जीक्यूटिव बॉडी. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट हैपेंस टू बी इनकरेक्ट. हमें करेक्ट बताना है, सो दिस कैंट बी आंसर, दिस कैंट बी आंसर. 50-50 पे हम लोग रीच कर गए हैं. आइदर दिस इज द आंसर और दिस इज द आंसर. लेट अस सी द सेकंड. दिस इज आल्सो कॉल्ड, दैट इज नीति आयोग इज आल्सो कॉल्ड बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इनटू द इंडिया. बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, अगेन इनकरेक्ट. नीति आयोग सिर्फ पॉलिसी सपोर्ट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन वाले स्टेज पे इसका फाइनेंशियल डीलिंग के साथ, जैसा कि फाइनेंस कमीशन वगैरह रिकमेंडेशन देता है, ठीक है, ये सब, या फिर पहले प्लानिंग कमीशन वगैरह देता था, तो इसका उस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है, कितना पैसा किस स्टेट को जाना. तो बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म तो इसको कह ही नहीं कर सकते. सेकेंड, इट प्रिपेयर सेकी, राइट, स्कूल एजुकेशनल क्वालिटी इंडेक्स, शॉर्ट फॉर्म में इसको सेकी बोला जाता है. तो हाँ, नीति आयोग जो है आपका ये इंडेक्स जो है ये तो पब्लिश करता है. सो 3 ओनली इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिवेंशन of cruelty to the Animals Act 1960. It extends to the whole of India. Yes, right now it is extending along with पहले except था before this JMK, जो कि जिसको कि UT बनाया गया पहले जब 370 था, तो ये एनिमल क्रूएलिटी
एक्ट के प्रोविजंस जो थे वो JNK को नहीं, तो तब आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता, बट अभी ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एनिमल वेलफेयर ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट, सो दैट इज करेक्ट। करेक्ट बताना है, बोथ द स्टेटमेंट हैपेंस टू बी करेक्ट। यहाँ इनकरेक्टली, दिस इज एक्चुअली इनकरेक्टली मार्क्ड, दिस वुड बी द राइट आंसर आफ्टर द JNK फॉर्मेशन, ठीक है। JNK इज UT स्टेटस, ठीक है, so C would be the right answer, ठीक है। I hope that is clear to you. The government from time to time try to give effect to some of the directive principles of the state policy. Which of the given provision are part of DPSP and have been given effect by the government? So provision for the reservation of upliftment of the scheduled caste, yes, this is part of DPSP, ठीक है। Formation of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 40, अगेन दिस इज पार्ट ऑफ DPSP, और इसके लिए गवर्नमेंट जो है अफेक्ट में लाने के लिए स्कीम्स, रादर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द राइट टू प्रॉपर्टी। सो ये एक्चुअली आपका आर्टिकल 300A के अंदर आता है, इसका DPSP से कुछ लेना देना नहीं है। सो 1 and 2 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, मिडिल इनकम ग्रुप स्कीम इज रिलेटेड टू, सो मिडिल इनकम ग्रुप जो स्कीम है वो रिलेटेड है आपके प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट लीगल सर्विसेज एट द लो कॉस्ट। सुप्रीम कोर्ट के इनिशिएटिव पे ये जो है 2017 में आपका ये स्कीम जो है वो स्टार्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग SFC, दैट इज स्टेट फाइनेंस कमीशन, एंड हमें बताना है यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द गवर्नर शैल कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन फॉर द स्टेट आफ्टर एवरी 5 years, दैट इज करेक्ट। इट मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग ग्रांट इन एड टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सो दैट इज एक्चुअली इनकरेक्ट। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है रिकमेंडेशन फॉर द ग्रांट इन एड फॉर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विल बी मेकिंग नॉट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड हमें इनकरेक्ट ही बताना, सो 2 only, that is B is going to be the right answer, okay। Which state of India has become the first in the country to declare internet access as a human right? So 2017 around या 2018 में, I don't clearly remember, but the Kerala was the first state which had declared internet access as a basic human right. United Nation already इससे पहले declare कर चुका है, but India में केरला जो है वो first state था, okay। Consider the following statement regarding Government of India Act 1990, okay। It introduced for the first time bicameral legislature at the center, that's correct। It for the first time allowed members to discuss the budget. To discuss the budget 1892 में ही हो गया था, so this is incorrect। It made provincial legislature of Bengal and United Province bicameral, नहीं, अभी प्रोविंशियल लेवल पे ये चीज़ें नहीं आई थी। इट डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू 2 parts, दैट इज ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व, सो दैट इज करेक्ट। हमें करेक्ट ही बताना है। सो सेकंड इनकरेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ आर ओनली करेक्ट स्टेटमेंट, हेंस सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सिटीजन चार्टर इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच represents a systematic effort to focus on commitment of organization towards its citizen in respect to various issues. Consider the following statement about citizen charter, okay। Citizen charter is not legally enforceable and non-justiciable, so that is correct। Department of Administrative Reforms and Public DAPRG जिसे बोलते DAPRG, ठीक है, grievance and operationalizes the citizen charter, so that is also correct। So both the statement happens to be correct and hence C is going to be the right। Consider the following statement about village courts or Gram Nyalaya। Gram Nyalaya is a mobile court and exercise power only of a civil court, नहीं, ये criminal cases भी देखता है। Because we have been asked correct statement, ठीक है, so one cannot be part of answer and one cannot be part of answer, then this can't be answer, ठीक है। अभी देखते हैं इन तीनों में से कौन सा एलिमिनेशन। द सीट ऑफ ग्राम न्यायालय इज लोकेटेड एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, नहीं, सीट ऑफ ग्राम न्यायालय जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की जो इंटरमीडिएट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ सीट होती है ग्राम न्यायालय के, ठीक है। ग्राम न्यायालय आर द कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, दैट इज करेक्ट, and its presiding officer is appointed by the Chief Justice of High Court, that is incorrect। Second segment of this statement is incorrect। अगर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा तो इसकी अपॉइंटमेंट जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट,
ठीक है, by the state government. So that is incorrect. So all three statement of this question is going to be correct and hence D is going to be the right answer. ठीक है. Consider the following statement about Nota. For the first time, Nota introduced the system of negative voting into the India. नहीं, negative voting pattern was already available even before introduction of this Nota into the India. ठीक है. Earlier what they used to do, if you had to exercise this Nota option, which was available, which was made available to the Indian voters at a later stage, ठीक है, you would go and ask the returning officer of that polling booth कि हे भैया मुझे ऐसा करो, रजिस्टर बताओ. एक रजिस्टर होता था और वहाँ आप अपना नेगेटिव वोटिंग जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं. बट दैट वाज लीडिंग टू इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी. ठीक है, अगर वो वर्बली जो जिसके सामने आपने वोटिंग किया है, जिसके सामने एंट्री, वो बता दे कि भाई इसने तो किसी को वोट नहीं किया है ना. सो दैट वाज इवेजन ऑन द प्राइवेसी, ऑन द चॉइसेस ऑफ द वोटर. ठीक है, सो दैट्स व्हाई यू हैड नोटा मच सेफर ऑप्शन. सो दिस इज इनकरेक्ट. हमें करेक्ट बताना है. सो अगेन दिस कैंट बी आंसर, दिस कैंट बी आंसर एंड दिस कैंट बी आंसर बिकॉज वन इज इनकरेक्ट. सो 2 and 3 both the statement happens to correct. ठीक है, अगेन एलिमिनेशन, बट मेक श्योर दीज टू स्टेटमेंट इज ऑल्सो रेड बाय यू. ठीक है, बिकॉज यू आर इन अर्ली स्टेज. ठीक है, तो लर्निंग मिलेगी, एडिशनल लर्निंग मिलेगी इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस ऑप्शन नोटा. ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द are the common between Indian president and the American president? Both have a fixed tenure of office. That's correct. American के पास 4 ईयर है एंड इंडियन प्रेसिडेंट के पास 5 ईयर्स है. सो एक फिक्स टेन्योर है. दैट्स करेक्ट. बोथ आर रिमूवेबल बाय लेजिस्लेचर अंडर स्पेशल क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर दैट इज कॉल्ड impeachment. So that is correct. American president also can be impeached and Indian president can also be impeached. Both have no function to discharge on their own authority. So that is Indian, that is incorrect actually. ठीक है, why? Because Indian president के बारे में आप कह सकते हो कि he or she do not have any function to discharge at his own, but अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में जो कि एग्जीक्यूटिव का हेड है, गवर्नमेंट का हेड है, उसके बारे में ये स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो द ओनली कॉमन फीचर बताना है ना. सो ओनली कॉमन फीचर इज दिस. ठीक है, करेक्ट बताना. सो 2 ओनली इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. 1 and 2 बोथ हैव, ओके दिस वाज आल्सो करेक्ट, बोथ हैव अ टेन्योर. ठीक है, दैट वाज समथिंग दैट हमने करेक्ट ऑलरेडी किया हुआ था. सो 1 and 2 बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच? सम वीटोज पावर दैट हैज बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट. ठीक है, ऑल्दो ऑल द वीटोज दैट इज लिस्टेड हियर आर नॉट अवेलेबल फॉर द प्रेसिडेंट, बट लेट अस सी. ठीक है, वीटो दिया हुआ है और उसकी डेफिनेशन आगे दी हुई है, सिंगल लाइनर, और हमें बताना है. क्वालिफाइड वीटो, क्वालिफाइड वीटो क्या होता है कि लेजिस्लेचर जो है वो ओवरराइड कर सके प्रेसिडेंट की अगर वीटो को बाई passing the bill again by some additional majority. So it refers to withholding the assent to a bill passed by the party. ये actually एब्सोल्यूट वीटो का डेफिनेशन है, ये क्वालिफाइड का नहीं है. सो दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड. सस्पेंसिव वीटो, द प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल और पार्ट ऑफ इट फॉर द रिकंसिडरेशन. दैट इज करेक्ट. एब्सोल्यूट वीटो कैन बी ओवररिडन बाय द लेजिस्लेचर बाय पासिंग द बिल फॉर द, ये दिस इज एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ योर क्वालिफाइड वीटो. सो दिस स्टेटमेंट आल्सो इज नॉट करेक्टली मैच्ड. सो दिस इज इनकरेक्ट. पॉकेट वीटो, द पार्ट to cause the identify indefinite delay in giving the assent. So that is correct. So 2 and 4 is going to be the right answer. B is going to be the right answer. Which of the following statement is are correct about electoral bonds? Okay, the political parties will be entitled to receive donation by check or cash from the donors. नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में ये करेक्ट नहीं है. इलेक्टोरल बॉन्ड में जब आपके थ्रू जब आप डोनेशन देते हो, यू विल हैव टू यूज योर बैंक अकाउंट, यू विल हैव टू यूज द डिजिटल मेथड, यू विल हैव टू यूज योर चेक्स. ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट. इफ दिस इज इनकरेक्ट, सो दिस कैंट बी आंसर, दिस कैंट बी आंसर, आइदर दिस और दिस. लेट अस से द बॉन्ड इज exempted फ्रॉम द इनकम टैक्स. दैट्स करेक्ट. इट विल एंड करप्शन. है हाउ जस्ट दिस इनिशिएटिव, जस्ट आपने क्या किया इलेक्टोरल बॉन्ड से के थ्रू 20,000 से 2,000 बोल दिया कि दिस इज द मिनिमम अमाउंट इन कैश यू कैन रिसीव. तो पहले जो 20,000 का बनाते थे, कैश में बिलिंग बनाते थे, अब 2,000 का थोड़ा अकाउंटिंग का कॉस्ट उनका बढ़ जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज का. ऑल्दो ये आपको समझाने के लिए, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज टू बी स्पोकन. आपको लॉजिकली, रेशनली, देयर आर मेनी रीजंस थ्रू विच यू विल प्रूव कि इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू एंड करप्शन एंड ब्लैक मनी जस्ट बाय यूजिंग वन टूल ऑफ दिस इलेक्टोरल बॉन्ड. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो
incorrect. So 2 only is going to be the right statement. B is the right statement. Consider the following statement in reference to Foreign Investment Promotion Board, FIPB. ये economics का question, we are not discussing it. Next, consider the following statement about appointment of the Lokpal. The chairperson of the Lokpal is appointed by the president. That is correct. The selection committee of Lokpal is headed by Union Law Minister. No, the selection committee which is a 4-member body, that will be headed by Prime Minister. You have Prime Minister, you have Chief Justice or a judge nominated by Chief Justice of, ठीक है, LOP लोकसभा से अपोजिशन जो लीडर हैं, ठीक है, वो होते हैं. सो दीज आर द पीपल, ठीक है, एंड प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करते हैं. प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस और एनी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस, LOP लीडर ऑफ अपोजिशन एंड देन स्पीकर ऑफ द लोकसभा. ठीक है. सो फर्स्ट line is the only correct बताना है. So 1 only is going to be the correct. A is the right answer. So with this we are wrapping up this video. We'll meet you tomorrow with the next video. Till then, bye bye.